So, hi everyone, this is your third part, which is the blood circulatory system. And as yesterday we talked about the blood groups, your antigens, your antibody, your different types of blood groups, your AB blood group system, and your RH factor. So, today we are going to deal with the blood circulatory system. So, as you can see that I've written here, the blood circulatory system, it consists of your heart, the most important thing, and the different types of your blood vessels, your arteries, your veins, and your capillaries. So, we are going to study one by one in detail about all these things. Fine. So first of all, let's just talk about its location, because sometimes in the exam, the examiner can ask you about its location, कि आपका heart कहाँ पे present होता है. So normally we say that in our left side we have the heart. So this is a wrong statement, and the heart is never on the left side, but it is felt so. Please remember this line: the heart is never on the left side, but it is felt so. So now where is the location of the heart is? So as I've written here, this is very important line, but that is why I have underlined it. The heart is right in the center between the two lungs. So imagine the two lungs, and between it the heart is sitting, okay? And above the diaphragm, I hope you must be knowing about the diaphragm. Diaphragm is a dome-shaped structure, and it is present between your thorax part and your abdomen part. It's between, and when you inhale and when you exhale the air, it presses down and it goes upward, because you have dealt with the diaphragm in your class 9. तो diaphragm एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे thoracic और abdomen region के बीच में होती है, डोम शेप होती है. जब आप सांस लेते हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं, तब डायफ्राम की जो शेप है वो चेंज होती है. लेट्स नॉट गो इनटू दिस डायफ्राम, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज where is the location of the heart is. It is right in the center between the two lungs and above the diaphragm. That's it. Never say that heart is on the left side. Always say that it is felt so. Now coming to its now why actually it is felt so. अब इसका भी एक reason है. When it contracts मतलब जब वो आपकी contraction करता है, ठीक है? I'll tell you what is contraction and relaxation when we are going to study about the heart rate or the heartbeat or the circulation, ठीक है? When it contracts, because heart pumps the blood, so it is relaxing also and it is contracting also. So when it contracts means like this, it contracts, it is most powerful at the left end. Left end पे सबसे ज़्यादा powerful heart की contraction होती है, which gives the feeling that heart is on the left side. ठीक है? तो जो heart होता है, heart की जो structure होता है, उसके जो लेफ्ट है, जो जब उसकी कंट्रैक्शन होती है, तो लेफ्ट एंड पे बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होती है. क्यों? जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, एंड व्हेन वेंट्रिकल इज गिविंग दिस ब्लड टू डिफरेंट पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, एट दैट टाइम द कंट्रैक्शन इज वेरी मच इन द लेफ्ट एंड. सो दैट इज व्हाई इट गिव्स द फीलिंग दैट हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, बट इट इज नॉट ऑन द लेफ्ट साइड. वेयर इट इज बिटवीन द टू लंग्स and it is above the diaphragm. That's it. Now coming to its covering. So before going into the covering, you should also know that what is it. It's not like a pan ka patta, because whenever we see the heart we draw the pan ka patta, but that's not the true notation. The size of the or we can say the structure or the shape of the heart is a closed fist. It's like this. It's a closed fist, and its size it's 12 centimeter in the length and 9 centimeter is its width. It's not important to learn all these measurements, but you should know that what is the shape of the heart. Now coming to its covering. So by what covering is your heart covered? So basically it is a double membranous covering which is called pericardium. तो जहाँ पर भी कार्डियम, कार्डियो, कार्डियक या फिर कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजी आता है, दैट ओनली डील्स विद योर हार्ट. ठीक है? तो आप याद रखेंगे कि जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. फाइन. नाउ देर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन और विच इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम. अगर आपका एक हार्ट है, हार्ट के बाहर आपकी कवरिंग है पेरिकार्डियम, सो इट इज कंटेनिंग अ pericardial fluid. This is very important. I have underlined it. A pericardial fluid. Why it is important? Because it reduces the friction during the heartbeat and protect it from the mechanical injuries. When your continuously heart is beating, it is relaxing, it is contracting and relaxing and contracting, because heart never stops. We have special type of muscles in our heart which never stops, which never get tired,
and they are kind of, we can say, involuntary muscles. So they know their work. They are going to relax and they are going to contract continuously. So for that, sometimes the friction can also occur. Fine. So for this, the pericardial fluid is given in the pericardium to reduce the friction. क्यों reduce करनी है friction? क्योंकि heart जब बार बार pump करता है. And second thing, it protects the heart from the mechanical injuries. For example, some kind of shock or some kind of, we can say, any type of mechanical injury can be to the heart when we play or when we push each other. So that actually this pericardial fluid is going to reduce the friction, and it is also going to form the we can say a barrier for the mechanical injuries or the protection from the mechanical injuries. Okay, fine. Now coming to the chambers of the heart, can you see the diagram over here? Okay, this is the simplest diagram I have made for you. It's not so tough. It's not so difficult. You just only have to remember the names of the chambers. Okay, as we know that humans are 4-chambered, and as we have 4-chambered heart, we have a closed circulatory system. Now, what is this closed circulatory system? The blood, our blood, is pumping and it is circulating in the closed vessels, in the closed blood vessels. And it is not like the other amphibians, not amphibians, it is not like other like insects which do not have these blood vessels, and so that is why they are known as your poikilotherms. Whereas the amphibians are your 3-chambered, your reptiles are your 3-chambered, but exception is there for your crocodile. It is partially 4-chambered. Your fish is 2-chambered, etc. So we are not going to learn about the different chambers. हमें ये पता होना चाहिए कि humans में 4-chambered heart होता है. अब ये chamber क्या है? Chamber, it's nothing but you can learn it by remembering that it has 4 rooms. दो करके इस rooms है और heart में 4 कमरे हैं. ठीक है? जैसे this is first, second, this is third and this is fourth. ठीक है? So first, second, third, fourth. This is your 4-chambered heart. अब इसमें आपको याद क्या रखना है? Always remember that some of the students might say, ma'am, this should be your right and this should be your left. No, because heart आपको उल्टा करके दिखाया गया. This is the ventral side of the heart. So that is why this is the left side and this is the right side. Okay, never mind ये left and right अभी हमने याद नहीं करना. हमें क्या पता होना चाहिए? As you can see, we have first and second. This is your upper atria. Upper atria, and atria means if we are talking about the auricles, upper auricles and atrium. We'll call atrium when it will say it's as a single unit. ठीक है? जब हम singular बात करते हैं तब हम इसे atrium बोलेंगे. अभी हमारे पास 2 atria है, एक left और एक right. हमारे पास 2 ventricles हैं, एक left और एक right. बस ये 4 हमारे पास chamber हैं. यही आपको सबसे ज़्यादा learn रखने हैं. ठीक है? Because at first we are talking about the chambers only. अब उसमें से हमारी blood vessels होती हैं जो I'm going to talk later on कि कौन सी blood vessels heart को लीव करके जाती हैं और कौन सी blood vessels heart के अंदर enter कर रही हैं. ठीक है? Can you see this diagram? I have made this diagram. I have made this vessel. Now what is this? देखो, जब भी हमारे पास ब्लड आता है, हमारे पास 2 ब्लड आते हैं. एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से प्योरीफाई होके, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरे पूरी बॉडी से. ठीक है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके यहाँ पे इस पार्ट में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है. ठीक है? राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ध्यान से सुनना है. आई हैव रिटन ऑल्सो हियर, इट पंप्स द ब्लड टू द लंग्स. When it is coming, when your deoxygenated blood from the body is coming to the, अब आएगा कहाँ से? ऑरिकल से होके ही आएगा. और ऑरिकल में कहाँ से आएगा? इन 2 ब्लड वेसल से आएगा. ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है. इन द नेक्स्ट डायग्राम आई हैव ड्रॉन दिस. ठीक है? Then the blood is coming from this superior vena cava. Superior इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाता है. इंफीरियर इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाता है. Then it is going to give the blood to the atria. This atria is going to give the blood to the ventricle from the right ventricle. Now this part is very important. From the right ventricle, the blood, as you can see the arrow, the blood is going to lungs for the oxygenation. ये deoxygenated blood lungs के पास जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि lungs blood को और deoxygenation से oxygenation में convert करते हैं. ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कैसे आएगा? थ्रू द पल्मोनरी वेन्स
From the pulmonary veins, it's come to your left atrium. From the left atrium, it goes to left ventricle. From the left ventricle, from here, इसको हम aorta कहते हैं. ये जहाँ पे 3 पाइप्स निकली हैं, दिस इज कॉल्ड एज अयोटा. एंड ये वाला जो ब्लड वेसल है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करवाता है. ठीक है. So now what are the chambers which are present in our heart is, as we have the 4 chamber heart, we have 2 upper atria, we have 2 lower ventricle. अब इसमें important क्या है, क्वेश्चन आपको ये आता है कि why your ventricles have thick muscular wall. So the very easiest example or very easiest explanation is, क्योंकि देखो जो एट्रिया है उसने सिर्फ ब्लड को रिसीव करना है. ठीक है. द एट्रिया इज गोइंग टू रिसीव द ब्लड एंड द वेंट्रिकल्स एक्चुअली इनके पास जब ब्लड आता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है एट्रिया से. ठीक है. दूसरी बात, द वेंट्रिकल हैज़ टू पंप द ब्लड टू लॉन्ग डिस्टेंस. अब ये वेंट्रिकल ही है दोनों, यहाँ से ब्लड जा रहा था लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन करने के लिए, यहाँ से ब्लड जा रहा था आपकी पूरी बॉडी में, पूरा बॉडी में फ्लो हो जाएगा. ठीक है. तो दैट इज वाई योर एट्रिया दे हैव द थिन वॉल्स. ये दोनों एट्रिया हैं, द एट्रिया हैव थिन वॉल्स बिकॉज एज दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट नेक्स्ट टू द वेंट्रिकल. इन दोनों के पास ब्लड आया, इन्होंने फटाफट से यहाँ से वेंट्रिकल को दे दिया. बट ये सारा का सारा ब्लड जब वेंट्रिकल के पास जाएगा, सो इट हैज टू होल्ड द ब्लड प्रॉपरली. अगर इसके पास थिक मस्कुलर वॉल्स नहीं होंगे तो ये ब्लड को होल्ड नहीं कर पाएगा. एंड सो दैट इज वाई दिस वेंट्रिकल्स they have we can say a thick muscular walls because they have to pump the blood to long distance. और ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये कहाँ तक ब्लड लेकर जाएगा, ये लंग्स को ब्लड देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसकी ऑक्सीजनेशन होगी. ये वाला कहाँ को देगा? This left ventricle will pump it to the farthest points in the body, such as up to the toes and up to the brain. So that is why the ventricles, they have the thick muscular walls. This is the answer for the question, that why ventricles have the thick muscular walls. And you have to remember this question because this is the pet question which can come in your exam. And second, आपसे ये पूछा जा सकता है कि how many chamber heart is present in the human beings and what is the covering of the heart called? So it is called your pericardium. And what is present in the pericardium? Your pericardial fluid. And what is the function of the pericardial fluid? It is actually a lubricating fluid which reduces the friction, and also it is protecting your heart from the mechanical injury. Okay, now next is we studied about the 4th chamber. We studied about the your atria, your ventricle. Now we are going to start with the blood vessels which is entering and leaving the heart. तो हार्ट में जो एंटर कर रही है और जो हार्ट से लीव कर रही है, उन ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ना है. एक सेकंड बेटा. ओके, सो व्हाट आर दी ब्लड वेसल्स विच आर एंटरिंग दी हार्ट. तो सबसे पहले हमने ये पढ़ना है. सो जस्ट लुक एट द डायग्राम. यू जस्ट हैव टू लर्न द डायग्राम एंड दैट्स इट. एंड इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ तुमको नाम याद रखने हो और इस डायग्राम को थोड़ा सा याद रखना बिकॉज ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल हेल्प यू इन 10th ओनली, ऑल्सो नॉट ओनली, ऑल्सो इन +1 एंड इन +2 ऑल्सो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दी what are the blood vessels which are entering. Now as you can see, the blood vessels which enters the heart is, सबसे पहले देखो from the right atrium. अब right atrium क्या है? This is your right atrium. जहाँ पे R है that is right atrium. RV is your right ventricle, LA is your left auricle and LV is your left ventricle. ठीक है. So from the right atrium it receives the 2 large vessels. Can you see? फ्रॉम द राइट एट्रियम एक लार्ज वेसल ये है और दूसरी लार्ज वेसल ये है. ये दोनों बड़ी बड़ी लार्ज वेसल्स हैं. अब ये क्या काम कर रही हैं? ठीक है. सबसे पहली है, सबसे फर्स्ट इज योर सुपीरियर वेना कावा. दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा. वी कैन ऑल्सो कॉल देम एंटीरियर वेना कावा क्योंकि ये पास है. एंटीरियर क्यों? क्योंकि ये हार्ट के थोड़ा पास है. दूसरी बात, सुपीरियर क्यों? बिकॉज इट इज गोइंग टू ब्रिंग. Now what you have to remember is, जो blood vessels हार्ट में एंटर कर रही हैं बड़ी राइट ऑरिकल में, वो कहाँ से ब्लड लेकर आ रही हैं? वो बॉडी से ब्लड लेकर आ रही हैं. कौन सा ब्लड लेकर आ रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुआ पड़ा है. ठीक है.
So this superior vena cava, also called anterior vena cava, brings the deoxygenated blood from upper region of the body. ये वाला बॉडी के अपर रीजन से ब्लड लाएगी और ये वाली ब्लड वेसल्स बॉडी के लोअर रीजन से ब्लड लेकर आएगी. अब लोअर रीजन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, अपर रीजन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बट अपर रीजन कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल योर हेड, योर चेस्ट एंड योर आर्म्स. फ्रॉम दैट दिस सुपीरियर वेना कावा विल ब्रिंग दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम. इसने सारा का सारा ब्लड लिया और यहाँ पे इकट्ठा कर दिया. ठीक है, और ये दिस इज नोन एज योर इंफीरियर वेना कावा. ठीक है, आई हैव रिटन हियर ऑल्सो, ये दोनों नाम मैंने लिखे हैं. दिस इज नोन एज योर इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा को पोस्टीरियर वेना कावा भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दूर होती है. अब ये क्या करती है? दिस ब्रिंग्स द ब्लड or this brings the deoxygenated blood from the lower region of the body. Now what is the lower region is? आपके abdomen region हो गया, आपके legs वाला region हो गया, वहां से इसने blood को इकट्ठा करके इसने राइट एट्रियम में जमा कर दिया. अब आपको पता है कि जब राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है तो नेचुरल सी बात है ये ब्लड किसको देगा? ये सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स को देगा. ठीक है, वो मैं आपको कब बताऊंगी? जब हम हार्ट की सर्कुलेशन वर्किंग पढ़ेंगे, तब देन आई लेट यू नो कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. सिर्फ अभी आपको क्या याद रखना है कि राइट एट्रियम में कौन सी दो बड़ी लार्ज वेसल्स एंटर कर रही हैं? एक सुपेरियर वेना कावा, एक इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर मतलब सुपीरियर बड़ा है, मतलब ऊपर की तरफ है, ऊपर जैसे दिमाग है, तो वहां से सारा ब्लड लेकर आएगी, हेड से, चेस्ट से, आर्म से, और नीचे वाली लेग से लेकर आएगी और एब्डोमेन से लेके आएगी. ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई. नेक्स्ट एक और है, देर इज थर्ड योर वी कैन से अ स्मॉल वेसल ऑल्सो विच इज कॉल्ड योर पल्मनरी वेन्स. कैन यू सी दीज टू वेन्स? ये जो दो छोटी वेन्स हैं ये कहाँ पर एंटर कर रही हैं? ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर कर रही हैं. दे आर नॉट एंटरिंग इन टू द राइट ऑरिकल. ठीक है, the most important thing which you need to remember, pulmonary veins हमेशा oxygenated blood को लेकर आएंगी. please do not make it wrong in any of the examinations. always remember जहाँ पर भी pulmonary veins आएगा वो हमेशा oxygenated blood को वो कैरी करेंगी. अब नाउ फ्रॉम वेयर दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग फ्रॉम? दिस ब्लड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दी लंग्स, क्योंकि लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और वो प्योरीफाइड ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है. कौन लेकर आता है? ये जो दो पल्मनरी वेन्स बनी हुई हैं ये लेकर आती हैं. ठीक है, तो क्या क्या एंटर हो रहा है हार्ट में? एक सुपीरियर वेना कावा एंटर हो रहा है, एक इंफीरियर वेना कावा एंटर हो रहा है, और ये दो पल्मनरी वेन्स एंटर हो रही हैं. दैट्स इट. ठीक है, ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दी ब्लड वेसल्स विच आर लीविंग दी हार्ट. अब वो वाली ब्लड वेसल्स जो हार्ट को लीव करके जा रही हैं तो वो कौन कौन सी हैं? जो एंटर कर रही थी कौन सी थी? एक सुपीरियर वेना कावा थी, एक इंफीरियर वेना कावा थी, जो दोनों राइट एट्रियम में जा रही थी, और लेफ्ट ऑरिकल में कौन एंटर कर रही थी? आपकी पल्मनरी वेन्स, एंड दे ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो नाउ लेट्स मूव टू द ब्लड वेसल्स विच लीव्स द हार्ट. इज नंबर फर्स्ट इज योर पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी, देखो आप देखो, अब किस में कंफ्यूज नहीं होना है. पल्मनरी वेन्स मैंने क्या बताया था? जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी. कहाँ पर देंगी? लेफ्ट ऑरिकल में, और वो कहाँ से ब्लड को लेकर आएगी? लंग्स से. ठीक है, L फॉर लेफ्ट ऑरिकल एंड L फॉर लंग्स. और लंग्स से कौन सा ब्लड आएगा? क्योंकि लंग्स हमेशा ब्लड को आपका ऑक्सीजनेशन करता है. ठीक है, तो वहां से आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा और यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, नाउ अब पल्मनरी आर्टरी, कैन यू सी दिस ग्रीन कलर पल्मनरी आर्टरी? ठीक है, एंड कैन यू सी इट्स पैसेज? This pulmonary artery is actually going and it is opening into your right ventricle. So from here, ये आपका right ventricle है. ठीक है, right ventricle से ये black color से जो मैंने पेन से बनाया, this is your pulmonary artery. ये एक आर्टरी है जो आपके हार्ट को लीव कर रही है. ठीक है, लीव कर रही है ना, बिकॉज एरो बाहर की तरफ है. दूसरा आपका ओके और दूसरी आपकी कौन सी है? कैन यू सी दिस ब्लू कलर आयोटा? ठीक है, ये आयोटा है, और देखो यहाँ से जस्ट सी, यहाँ से मैंने रेड कलर से एरो लगाया है, और ये एरो कहाँ पर है? ये कौन सा एरिया है? दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आपका वेसल निकल रहा है. इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज गोइंग, एंड दिस रेड कलर एरो एक्चुअली दिस इंडिकेट्स दैट दिस वेसल इज लीविंग द हार्ट एंड इट इज कैरिंग द
ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, तो मैंने आपको जो बताया था, ये जब पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, लेफ्ट ऑरिकल में देती हैं, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ को जाएगा, हेयर इन दिस एरिया। ये यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, अब ये जो मैंने छोटा सा यहाँ पे गोला लगाया ना, ये गोला एक्चुअली क्या है ना, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज अ वॉल्व। यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, बिकॉज अगर यहाँ वॉल्व नहीं होगा बच्चों, तो जब यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड आ रहा है, व्हेन इफ इट इज गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू द अयोटा, इट कैन कम बैक, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है ब्लड का कि ये दोबारा से पीछे की तरफ आ सकता है। सो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वी आर प्रोवाइडेड विद सम ऑफ द वॉल्व। जैसे यहाँ पर एसवी लिखा है ना मैंने, दिस इज सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये एक वॉल्व है जो कि प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी में, और एक और वॉल्व है जो कि अयोटा के पास प्रेजेंट है। ठीक है, याद क्या रखना है, वर्ड्स याद रखनी है आपको। ठीक है, अब देखो यहां से आपका ऑक्सीजनेटेड, आपका प्योरीफाइड ब्लड जाएगा अयोटा में, और अयोटा से चला जाएगा बॉडी में। तो चला जाएगा मतलब ये भी आपका हार्ट को लीव कर रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी भी आपके हार्ट को लीव कर रही है। सो वी हैव टू मेजर ब्लड वेसल्स विच आर लीविंग द हार्ट। द पल्मोनरी आर्टरी, इट अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। देखो मैंने अब यहाँ पे लिखा है अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, मतलब क्या, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ से निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से। ये जो अयोटा है ये कहाँ से निकल रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मैंने कलर चेंज यहाँ पे पेन का इसलिए किया है सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर इट इजिली। Pulmonary artery will always carry the deoxygenated blood to the lungs. क्यों? For purification, for oxygenation. And this your from the left ventricle, the oxygenated blood from the aorta, it will go back to the body, ताकि बॉडी को तुम्हें साफ बिल्कुल प्योरीफाइड ब्लड तुम्हारी बॉडी को मिल सके। ठीक है, अब एक चीज दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां से क्या आ रहा था, इन दोनों से क्या आ रहा था, ये this is your superior vena cava, this is inferior vena cava. Both of them, they were, what were they doing, they were collecting the deoxygenated blood from the body and they were giving to the right auricle. Here in the right auricle, the blood is collected here, the blood will go to the right ventricle. From here the, अब यहाँ पर जितना भी ब्लड है वो सब सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ही चल रहा है ना, यहाँ से वो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी किसको देगा ऑक्सीजनेशन करने के लिए, लंग्स को देगा। लंग्स ने भाई ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, अब वो ब्लड कहाँ से दोबारा हार्ट में एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो अंदर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी। अब वो राइट लेफ्ट ऑरिकल में है, लेफ्ट ऑरिकल किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा, अयोटा को देगा। फिर से अयोटा किसको देगा, बॉडी को देगा। सो दिस इज एक्चुअली वी कॉल इट अ डबल सर्कुलेशन, और ये सारा का सारा काम हमेशा इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर दी वॉल्व्स। अब वॉल्व्स हम बोल सकते हैं किसी जैसे एक प्लग हो गया, या फिर एक लॉक हो गया, या फिर एक डोर हो गया, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है रोकना। किसको रोकना, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, ताकि जो तुम्हारा हार्ट की पंपिंग है वो नॉर्मल रेट से होती रहे। सो द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द वॉल्व्स विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीछे की तरफ आएगा तब भी वॉल्व काम करेंगे, नो। जब भी आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है अपने अपने डेस्टिनेशन में, उस चीज को बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकने के लिए हमारे पास कुछ वॉल्व्स होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डिफरेंट वॉल्व्स। Okay, so we are going to the valves which regulate the flow of the blood in a single direction. So what is single direction? मतलब एक ही दिशा में उसने जाना है, उसने पीछे मुड़कर नहीं आना है। The first valve which I have made here, you just look at the diagram, ठीक है? Just look at the diagram and just listen and just go through the book. अब इसमें सबसे पहला जो valve आता है that is your right AV valve. अब देखो ये this is your auricle, this is your ventricle, this is the right side, ठीक है? जो वॉल्व आपके राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा उसे हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज लोकेटेड एट द अपर्चर बिटवीन द राइट ऑरिकल and the right ventricle. So this red color line, I am representing here it as a valve. It's a kind of valve. मतलब valve एक है, you can say it's a kind of जैसे आपके flap है, flaps like structure है, ठीक है, जो open और जो close होते हैं.
अब कैन यू सी दीज लाइन्स, दीज वर्टिकल एक्सटेंडिंग लाइन्स एक्चुअली. राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये राइट साइड है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है. राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के पास एक थिन ट्रायंगुलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये ट्रायंगुलर लाइक है, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज अप टू हियर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड गोज अप टू हियर. सो दीज आर द थिन ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, और वी कैन से अ लीफ लाइक फ्लैप्स. फ्लैप्स होते हैं, या फिर आपकी बुक में कस्प्स भी दिया गया है. तो ये तीन होते हैं. कैन यू सी द डॉट ओवर हियर, दिस फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. तो ये जो तीन डॉट हैं एक्चुअली, इन्हें हम फ्लैप्स कहते हैं. अगर ये तीन हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज द नेम गिवन ट्राई कस्पिड वॉल्व. राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के पास लंबे लंबे से ट्रायंगुलर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. वी कॉल देम ट्राई कस्पिड वॉल्व. अब ये जो ट्राई कस्पिड वॉल्व है, ये क्या काम करता है? जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, पूरा का पूरा जब खाली हो जाता है ये आपका राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि ब्लड अब इसके पास है, इट इमीडिएटली क्लोजेस सो दैट देयर शुड बी नो बैकफ्लो ऑफ द ब्लड टू द राइट ऑरिकल. इसीलिए यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व को कोई ना कोई तो पकड़ के रख रहा होगा पोजिशन में. ऐसे तो नहीं, दे आर नॉट इवन हैंगिंग इन दी योर राइट वेंट्रिकल, नो. सो नाउ these tricuspid valves, they are given support by this black color I have drawn here. They are given support by cord like thing. Now what is this cord? If you have seen a parachute, the strings or the cords of that parachute, it resembles these cord. तो जो cord है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व की एपिक्सिस, मतलब ये जो कॉर्नर है, इनको पकड़ के रख रहा है, we call it a chordae tendineae. This question comes, this is very important. What is that structure which holds the flaps in the position? That is called chordae tendineae. Chordae tendineae एक ऐसा स्ट्रक्चर है which actually holds the position by the cords. किसकी पोजिशन को होल्ड करता है? वो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व की अपाइसिस को पकड़ के रखता है. ठीक है, अब chordae tendineae को भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होगा. सो द chordae tendineae इज सपोर्टेड बाय ये यहाँ पे जो वेवी लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये सारी की सारी मसल्स हैं. सो दिस chordae tendineae इज एक्चुअली वी कैन से is hold or is supported by the papillary muscles. यहाँ से ये जो आपकी वेंट्रिकल की मसल है, ये जो वेंट्रिकल की वॉल है, वहां से आपके ये ब्लू कलर की मैंने मसल्स बनाई हैं. दीज आर कॉल्ड द पैपिलरी मसल्स. और ये किसको होल्ड करती हैं? कॉर्डे टेंडनी को होल्ड करती हैं. कॉर्डे टेंडनी किसको होल्ड कर रहा है? कॉर्डे टेंडनी तुम्हारे ये जो कॉर्नर्स हैं, जो बिल्कुल टिप हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व की, उनको पकड़ के रख रहा है. उनको क्यों पकड़ के रख रहा है? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ फ्लैप ओवर हियर. ये फ्लैप नहीं होगा तो क्या होगा? सारा का सारा ब्लड आपका पीछे की तरफ चला जाएगा व्हेन इट इज फिल्ड विद द ब्लड, व्हेन दिस राइट वेंट्रिकल इज फिल्ड विद द ब्लड. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम चीज आपकी यहाँ पर भी है. यहाँ पे राइट था, अब यहाँ पे लेफ्ट आ गया. सो दी valve which is present between your left atria and left ventricle is called your left AV valve or left atrioventricular valve. ठीक है, जो left atria ventricle के बीच में होगी उसे हम left atrioventricular valve बोलेंगे. अब देखो डिफरेंस क्या है. राइट में हमेशा ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होगा, ये याद रखना है. राइट साइड में हमेशा ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, राइट ट्राई, यू कैन लर्न इट एज अ राइट ट्राई. ठीक है, एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका बाइकस्पिड होगा. अब बाई का मतलब क्या होता है? टू. तो यहाँ पे देखो, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. सो दीज आर टू फ्लैप्स और दीज आर टू कस्प्स विच आर प्रेजेंट टू द लेफ्ट साइड. अब दोबारा सेम चीज, इन दोनों को कौन पकड़ के रख रहा है? इन दोनों को कॉर्डे टेंडनी पकड़ के रख रहा है. कॉर्डे टेंडनी को कौन होल्ड कर रहा है? पैपिलरी मसल्स. वो पैपिलरी मसल्स कहाँ से आ रही हैं? वो आ रही हैं मस्कुलर वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक तुम्हारा हो गया राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एक हो गया तुम्हारा लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ दिस बाइकस्पिड वॉल्व? सो द आंसर इज माइट्रल वॉल्व, MITRAL. ठीक है, माइट्रल वॉल्व इज द अनदर नेम ऑफ योर बाइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, एक और वॉल्व प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं पल्मनरी सेमील्यूनर वॉल्व. ठीक है,
पल्मनरी, यहाँ पे कैन यू सी हियर दिस स्ट्रक्चर इज पल्मनरी। जो पल्मनरी आर्टरी में प्रेजेंट होता है वॉल्व, उसे हम पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। द वॉल्व विच इज प्रेजेंट इन द पल्मनरी आर्टरी इज नोन एज योर पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी पल्मनरी आर्टरी? राइट वेंट्रिकल से हो रही थी। जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जा रहा होगा, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे आपका पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सेम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होके बॉडी में जा रहा होगा, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है और उसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोटा है तो ये आयोटा का वॉल्व होगा। सो दिस इज नोन एज योर, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। नाम चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। जैसे आपके पल्मनरी का है तो पल्मनरी के पास जो पल्मनरी है वो उसके पास सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा, और जो आयोटा है उसके पास भी सेमी ल्यूनर वॉल्व होगा। वॉल्व दोनों सेम है, नाम कहाँ पे चेंज होंगे? जो पल्मनरी का है उसमें पल्मनरी ऐड कर देना, जो आयोटा का है उसमें आयोटा ऐड कर देना। बात वही है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। कहाँ से? ये जो दोनों वेसल्स हैं इनसे पीछे की तरफ ब्लड ना आ जाए, इसीलिए ये पॉकेट लाइक प्रोजेक्शंस दी होती हैं, ठीक है। एंड ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है दिस इज 3 इन नंबर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 3 इन नंबर, और दोनों का काम क्या है? दोनों का काम एक ही है, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एंड मेजर वॉल्व्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड इन अ सिंगल डायरेक्शन। ओके तो बच्चों ये मेरी पूरी की पूरी शीट है, स्लाइड है, जिसमें मैंने ये सारे के सारे आपके वॉल्व्स के बारे में, दी योर वेसल्स विच आर लिविंग और एंटरिंग द हार्ट वहाँ पे लिखा है, एंड दिस इज द होल डायग्राम, ठीक है। दिस ऑल डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, और इफ यू वांट द नोट्स ऑल्सो यू कैन मैसेज मी एंड आई विल सेंड यू द PDF और आई विल सेंड यू इन द लिंक। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। बट ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। Now let's move to your last topic, which is circulation of the blood in the heart. This will be your last topic of today. Okay, चलो बच्चों, अब आते हैं हम सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन दी हार्ट में, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं आपको करना है। जो मैंने डायग्राम आपको हार्ट की बना के दिखाई थी, ठीक है, वो आपको जस्ट लर्न रखनी है। बट फॉर योर कन्वीनियंस, आप जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चैम्बर्स क्या होते हैं, जस्ट रिमेंबर, जस्ट मेमोराइज, वेट अ सेकेंड, जस्ट मेमोराइज कि चैम्बर एज दीज 4 डब्बा, ठीक है। ये 4 आपके डब्बे हैं, ठीक है। ये 4 आपके घर हैं, और एक घर में आपके ये 4 आपके रूम्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या है, ये राइट साइड है, सो ये राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 चीजें। आप क्या याद रखेंगे? राइट ऑरिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट साइड आपकी हार्ट के राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो भैया वो लंग्स तो दे नहीं सकते, क्योंकि लंग्स का क्या काम है, वो तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन कर रहे थे। बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो रही है, तो बॉडी से जो भी जितना भी आपका गंदा, वी कैन से गंदा और इम्प्योरिफाइड जो ब्लड है वो आपके राइट ऑरिकल में आएगा। अब राइट ऑरिकल को देगा कौन? मैंने आपको बताया था कि 2 वेसल्स आपकी राइट ऑरिकल में एंटर करेंगी, तो यहाँ पे मैंने बना दी है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ बनाई है तो सीधी सी बात है कि भाई ऊपर के रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। नीचे बनाई है तो दिखती बात है कि बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, पहले हम राइट के डिस्कस करेंगे। राइट में आया भाई आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो एरो मैंने बनाया है यहाँ पे कौन सा वॉल्व था बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि 3 थे वहां पे फ्लैप्स, ठीक है। चलो ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, यहाँ पे जितना भी आपका ब्लड था, ठीक है, अभी ये राइट ऑरिकल उसे होल्ड करके बैठा था, उसे पकड़ के बैठा था, तो मतलब राइट ऑरिकल इस टाइम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा है। वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जकड़ के बैठा है ब्लड को, कि उसने ब्लड को भाई कहीं भी जाने नहीं देना है। जब आपका राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है, भैया मेरे पास तो कोई ब्लड नहीं है, मैं अभी आराम से बैठा हुआ हूं, ठीक है।
अब राइट ऑरिकल कहता है मैं इससे ज्यादा ब्लड नहीं होल्ड कर सकता, तो राइट ऑरिकल क्या करेगा, यहां पे जब ब्लड सेंड करेगा इसका ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा, सारा का सारा ब्लड किसके पास आ गया, राइट वेंट्रिकल के पास आ गया, और ये ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, जैसे ही ब्लड इसके पास आया फ्लैप्स दोबारा बंद हो गए। ठीक है, और अब देखो सारा का सारा ब्लड जब इसने रिलीज कर दिया, सो एट दैट टाइम दिस राइट ऑरिकल माइट बी रिलैक्सिंग, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, भाई मैंने सारा ब्लड इसको दे दिया, अब तेरी से दर्द है, तूने क्या करना है। जब ये रिलैक्स करेगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब इतना ज्यादा फ्लो में, इतना ज्यादा प्रेशर में ये ब्लड है कि अब इसका दूसरा काम क्या होगा, वेंट्रिकल के पास इतना सारा ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल इस ब्लड को संभाल नहीं पा रहा है, तो यहां से वो किसको देगा, मैंने क्या बताया था, राइट वेंट्रिकल से क्या ओरिजिनेट होता है, एक वेसल ओरिजिनेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए कौन लेकर जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी, किसको देगी, लंग्स को देगी, ये मैंने लंग्स बनाए ना यहाँ पे, लंग्स को देगी। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी में एक भैया दरवाजा होता है जो कि आपके बैक फ्लो को रोकता है, उस दरवाजे को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। एक वॉल्व यहां याद हो गया, दूसरा वॉल्व यहां याद हो गया। ठीक है, अब देखो, अब लंग्स ने क्या किया भाई, ऑक्सीजनेशन कर दी, प्योरीफाइड ब्लड यहां से आया, मैंने क्या बताया था, पल्मोनरी वेन्स हमेशा क्या देंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में हमेशा आपका प्योरीफाइड ब्लड आएगा बच्चों, लेफ्ट ऑरिकल में जी आ गया आपका ब्लड। अब लेफ्ट ऑरिकल के पास भी प्रेशर आ गया, भाई अब मैं इतना ज्यादा ब्लड नहीं इकट्ठा कर सकता, तब जब आपके लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया। व्हेन इट वाज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इट वांट टू रिलीज द ब्लड, तो यहां पे कौन सा आपका वॉल्व था, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हुआ, सारा का सारा ब्लड किसके पास चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। जब वेंट्रिकल के पास ब्लड आया ऑरिकल रिलैक्स होके बैठ गया। ठीक है, और वेंट्रिकल ने ये सारा का सारा ब्लड किसको देना चाहा, अयोटा को, क्योंकि अयोटा क्या करेगा, अयोटा हमेशा बॉडी को देता है कौन सा ब्लड, जो प्योरीफाइड ब्लड है वो बॉडी को देता है। फिर से बॉडी से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, फिर से किसको देगा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो बेटा ये सारा का सारा जितना भी आपका साइकिल है इट कीप्स ऑन गोइंग। मैंने आपको बोला कि जब आपके ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास सारा का सारा ब्लड आता है। That term is actually known as, that contraction term is known as systole। और जब आपका ऑरिकल रिलैक्स करता है तब उसको हम कहते हैं डायस्टॉल। सिस्टोल और डायस्टॉल ये दोनों कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे या कोई भी रिलैक्स करे, ये दोनों टर्म आएंगी। मतलब जब भी किसी की कॉन्ट्रैक्शन होगी हम कहेंगे सिस्टोल, जब भी किसी की आपकी डायलेशन होगी या जब भी किसी की रिलैक्सेशन होगी हम कहेंगे डायस्टॉल। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको लर्न रखनी है। फाइन, बस ये आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट है। क्या हुआ जी, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आया, डीऑक्सीजनेटेड ने अपना काम किया, ऑक्सीजनेटेड ने आयोटा से अपना काम किया। सो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं आपको हार्ट बीट पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए, जब ऑरिकल के पास ब्लड था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो कितने सेकंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वेंट्रिकल के पास ब्लड आया तो ये कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही होता है, पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ये ब्लड इसको देते हैं वेंट्रिकल को, फिर जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तब ऑरिकल रिलैक्स हो जाता है, वेंट्रिकल, फिर जब वेंट्रिकल के पास ब्लड आता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जकड़ के बैठा है उस ब्लड को। जब वेंट्रिकल ने अपने अपने ब्लड वेसल्स में दे दिया ब्लड, तब वेंट्रिकल भी भाई रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन हार्ट। सो लेट मी जस्ट शो यू द होल ऑफ द पेज। Okay, beta. So can you see this whole page? I've written each and every statement regarding the circulation of the blood. Okay? So thank you so much for watching the video. Do tell me if you have understood or not, and let me just know your questions if you have any kind of query. Thank you for watching and have a nice day, and God bless you to all the students.